Hi guys. So I've been pursuing BSc Honors Agriculture from Govind Vallabh Pant University of Agriculture and Technology. And one thing which I recently realized is for us CBSE students, there's not much of the content available on YouTube. Content is available, no doubt, but some of it isn't proper Hindi, and some of it isn't just like typical professor lectures, which like do not explain much of it. So let's quickly sweep through some of the lectures today of farm power and machinery since I was studying it. So I thought to record it as well. So for lecture 1, it is mainly about farm power in India, animal and what is farm power. So basically, energy is required to do anything. In agriculture, also energy is required. So farm power is that essential input in agriculture, which provides energy for timely operating any activity of production on agricultural land. And what are sources of farm power? So there could be human source. The main line which is important about human sources, that an average human develops a power of about zero point 0.1 horsepower in one day. And then there's animal power. In animal power, the main points are like that animals develop an average, like two bulls develop an average of 1 horsepower. And generally animals like give 1/10 of their body weight as draft power. Like they can pull 1/10 of their weight body weight behind their backs, and a donkey can do it 1 by 20th. Then mechanical power, tractors, power tillers, oil engines, all these give mechanical power. Mechanical power is basically when you burn fuel and generate thermal energy and then convert into mechanical energy. Then there's electrical power, which is basically used for pumping water, etc. Then there's renewable energy, which includes biogas, solar energy, and wind energy. Human power, as I said, an average man can develop maximum power of zero point 0.1 HP for doing farm work. Animal power, power developed by an average pair of bullocks about 1 horsepower, like two bullocks can develop 1 horsepower. And the average draft an animal can exert the force of 1/10 of its body weight. When we talk about mechanical power, mechanical power can include stationary oil engines. Stationary oil engines are basically your generators, where you like the engine is stationary at one place. You put in the oil, it starts rotating, and because of it, it generates electricity. Then there are tractors. Of course, tractors do most of the work on agricultural land. Then there are power tillers, and then there are self propelled combines. If we talk about internal combustion engine, like it is a good device. Like if we talk about devices that convert fuel into useful mechanical work, they are called combustion engines. Combustion engines can be of two types, internal and external. Like internal ones basically होता क्या है that in internal ones उस engine के अंदर ही fuel burn हो रहा है, and because of that burning of fuel वो engine चल रहा है. And in external one there's an external setup basically जहाँ पे वो burn होता है, and then उसकी वजह से steam produce होती है water से, और फिर उस steam को engine में डाला जाता है, and because of that steam basically जो engine है वो चलता है. Now internal combustion engine क्या था, जिसमें आप लिक्विड फ्यूल को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो उसे जला के, एंड देन उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो. इंटरनल और एक्सटर्नल हो गए. इंटरनल के भी फर्दर टाइप्स है, जैसे स्पार्क इग्निशन इंजन या पेट्रोल इंजन, और कंप्रेशन इग्निशन इंजन या डीजल इंजन. We'll talk about these also later. These are basically parts of combustion, types of combustion engine. But the thing which is written here and is very important is that the thermal efficiency of diesel engine is much more higher, 32 to 38%, and a petrol engine is 25 to 32. Therefore, all the tractors and power tillers operated today are basically diesel engines. Now then comes electrical power. Electrical power is used in electrical motors,
and the operating cost like remains constant. You just have to buy the motor ones, and basically it does not need anything again and again. Then there are renewable energy, but they're putting setting them up to use in order to use them is very expensive. Like solar panels are also expensive. But अभी ना recently कुसुम स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, विच इज़ एन इनिशिएटिव, लाइक जिससे गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि फार्मर्स अपने सोलर पावर लगाएं, अपनी जो एनर्जी है उसे खुद प्रोड्यूस करें अपने फार्म पर, एंड इफ देयर इज एक्स्ट्रा दे आल्सो सेल इट आउट. सो दैट इज आल्सो गोइंग ऑन अभी आजकल में. देन देयर इज विंड फार्म्स एंड बायोगैस प्लांट्स, काफ़ी कामों के लिए यूज़ होती है. अनदर थिंग विच यू नीड टू लर्न अबाउट इज द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ डिफरेंट ऑफ देम. सो अगर ह्यूमन पावर का मेरिट देखें तो ह्यूमन पावर हम सब ह्यूमन से बहुत ईजिली अवेलेबल है, समझ जाते हैं चीज़ों को, सारा वर्क कर लेते हैं. दिस इज़ लाइक एडवांटेज. बट डिसएडवांटेज भी बहुत है. सबसे ज़्यादा पैसा तो ह्यूमन को ही चाहिए, सबसे ज़्यादा नखरे भी ह्यूमन के, एफिशिएंसी लो है, सब कुछ चाहिए, मेंटेनेंस पूरी चाहिए, और वेदर और सीज़न के हिसाब से काम नहीं करना होता है. लाइक ठंडा होगा तो काम नहीं करना होगा. इतनी सर्दी में बैठ के मैं ये कर रही हूँ, वाह, वेरी एफिशिएंट. एनिमल पावर की बात करें, एनिमल पावर भी इजीली अवेलेबल होती है, सारा वर्क कर सकती है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट लाइक लो तो नहीं होती है, बट इन कंपैरिजन टू ट्रैक्टर्स वगैरह तो कम ही होती है. एक्चुअली लो भी हो सकती है, बिकॉज गाय भैंस दूध देने वाली महंगी आती है, काम करने वाली नॉर्मल रेट ही होती है. मैन्योर सप्लाई कर देती है जिससे कि बायोगैस प्रोड्यूस हो सकती है, और फार्म प्रोडक्ट्स पे रह लेती हैं. इनका वर्क इतना एफिशिएंट नहीं होता है, सीज़न और वेदर से ये भी अफेक्ट होती हैं, एक स्ट्रेच में सारा काम ख़त्म नहीं कर सकती, इन्हें भी पूरी मेंटेनेंस चाहिए होती है, और ये अनहेल्दी और डर्टी एटमॉस्फेयर बनाते हैं नियर द रेसिडेंस. ठीक है, और काम करने में काफ़ी स्लो भी होते हैं. देन कम्स मैकेनिकल पावर. एडवांटेजेस देखिए तो एफिशिएंसी काफ़ी हाई है, वेदर से इफेक्ट नहीं होते, एक बारी में एक स्ट्रेच में सारा काम कर देता है, स्पेस कम चाहिए होती है, चीपर फॉर्म ऑफ पावर है. लेकिन इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई होती है, फ्यूल काफ़ी कॉस्टली आता है. ठीक है, और रिपेयर और टेक्निकल नॉलेज जो है वो चाहिए होती है इसको. उसके बाद फिर आता है इलेक्ट्रिकल पावर. इलेक्ट्रिकल पावर जो है चीप फॉर्म ऑफ पावर है, इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रेच में भी काम कर सकता है. ठीक है, मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी लो है, सीजन से इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसके भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई है. ठीक है, उसके बाद टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, और अगर इसे ढंग से केयरलेसली हैंडल किया तो काफ़ी बड़ा डेंजर हो सकता है. सो दीज आर बेसिकली सब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लाइक सोर्सेज ऑफ पावर. उसके बाद आता है फार्म मैकेनाइजेशन. व्हाट इज़ फार्म मैकेनाइजेशन? सो बेसिकली अब टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, जब उन्हें एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए पे अप्लाई करते हैं ताकि क्रॉप यील्ड इंक्रीज हो सके, तो उसे फार्म मैकेनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, इसमें क्या आता है, मैकेनिकल एड्स जो एग्रीकल्चर में हेल्प करें, उनका डेवलपमेंट, एप्लीकेशन और मैनेजमेंट. ठीक है, और मैकेनाइजेशन का बेसिकली काम ये होता है कि जो नॉर्मल इनपुट्स है जैसे कि वाटर, सीड और फर्टिलाइज़र, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, इनके साथ जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो टाइमली हो सके. ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? टाइमलेसनेस ऑफ ऑपरेशन, प्रिसिशन ऑफ ऑपरेशन, यानी कि टाइमलीनेस, टाइम से हो रहा है सारा काम, प्रिसिजन बिल्कुल एक्यूरेटली हो रहा है सारा काम. ठीक है, वर्क एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो रहा है, सेफ्टी इन्हांस हो रही है, लेबर थक नहीं रही है, रिडक्शन ऑफ डर्जरी इन ऑफ लेबर, रिडक्शन ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट प्रोड्यूस. इधर उधर गिर जाता है अगर प्रिसिजन से नहीं होता है काम तो फिर वेस्ट होता है वो, तो उसमें भी रिडक्शन होता है. रिडक्शन ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप्स एंड फूड प्रोड्यूस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इंक्रीज इकोनॉमिक रिटर्न टू द फार्मर, improve dignity of the farmer, like if he is owning, he is dignified in the area, progress and prosperity in rural areas. लेकिन फार्म मैकेनाइजेशन के साथ कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स भी हैं क्यों ये नहीं की जा सकती है. सबसे पहले तो इंडिया में काफ़ी स्मॉल साइज ऑफ लैंडिंग्स हैं, लैंड होल्डिंग्स है, लाइक लैंड फ्रेगमेंटेशन इज़ अ ह्यूज 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 प्रॉब्लम इन इंडिया. फार्मर्स की इन्वेस्टिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, फार्मर्स आर लाइक वेरी पुअर. ठीक है, उसके बाद ड्राफ्ट एनिमल्स जब हमारे पास हैं तो हम यूज़ क्यों ना करें. ठीक है, फार्म मशीनरी कई बार जो हमें ऑपरेशंस करने होते हैं वो कर ही नहीं पाती है, उसके लायक ही नहीं होती है.
ठीक है, आसपास रिपेयर की फैसिलिटी नहीं है तो लेके भी क्या फ़ायदा, वो बार बार उसे इधर उधर ढोके तो ले जाया नहीं जा सकता ना। ठीक है, ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, लाइक चलाने वाला होना चाहिए ना, ट्रैक्टर कोई अगर ले रहा है किसान तो ही मस्ट नो हाउ टू लाइक ड्राइव इट। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरर, प्रॉब्लम कुछ और है, बन कुछ और रहा है। हाई कॉस्ट ऑफ मशीन्स, मशीन्स की कॉस्ट ज़्यादा है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। Then there's this lecture true, which is like a 2 stroke and 4 stroke engines वगैरह। तो as I told you, हीट इंजन्स होते हैं। ठीक है, हीट इंजन्स क्या होता है, बेसिकली फ्यूल को बर्न करेंगे, उसमें से जो हीट डेवलप होगी उस हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंबशन कहाँ पे हो रहा है, इसके बेसिस पे एक्सटर्नल हो गया और इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल में जो है वहाँ पे बाहर एक लाइक अदर सेटअप होगा, बॉयलर होगा, जहाँ से वाटर की स्टीम अंदर इंजन में आएगी और उस स्टीम की वजह से इंजन ऊपर नीचे होगा। ठीक है, लाइक रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा इंजन का पिस्टन। तो लाइक यू विल गेट टू नो दीज टर्म्स अभी थोड़ी देर में। तो ये हो गया एक्सटर्नल का। और इंटरनल में क्या होता है कि उस इंजन के सिलेंडर के अंदर ही फ्यूल की बर्निंग हो रही है, जिस वजह से वो पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ऊपर नीचे का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस आ गया। ठीक है, फ्यूल कौन सा यूज़ किया उसके बेसिस पर, बेसिकली मेन तो डीजल और पेट्रोल इंजन ही होते हैं। ठीक है, और डीजल इंजन को हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं, या इंजेक्टर टाइप इग्निशन इंजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो एयर होती है ना वो कंप्रेस होती है, लाइक एयर कंप्रेस होती है। ठीक है, और उस टाइम पे एयर के कंप्रेस होने की वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज हो जाता है, और इस पॉइंट पर वो फ्यूल जो है इंजेक्टर इंजेक्ट करता है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे फ्यूल आने की वजह से फ्यूल एकदम से बर्न करता है, और फिर लाइक एक पावर स्ट्रोक करके आता है, वो आता है। तो बेसिकली ऐसे चलता है ये। और स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है कि वो फ्यूल और एयर दोनों के मिक्सचर को कंप्रेस कर रहा होता है, और उसी टाइम हम एक स्पार्क छोड़ते हैं, एक चिंगारी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल बर्न करता है। स्पार्क इग्निशन इंजन बेसिकली पेट्रोल इंजन में होता है, और इसको सीवीसी भी कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन, क्योंकि जब वो हम ऊपर कर रहे हैं एयर फ्यूल मिक्सचर को तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम में आ गया है। और नीचे वाला प्रेशर इंजन इसलिए कांस्टेंट प्रेशर इंजन, क्योंकि हमें कांस्टेंट प्रेशर पे उस फ्यूल को अंदर छिड़कता है ना इंजेक्टर की हेल्प से। तो ये हो गया इग्निशन के बेस पे। देन देयर इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग साइकिल पे आ गया 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस यू मस्ट बेसिकली नो लाइक द पार्ट्स ऑफ इंजन। तो पहले वहाँ पे शिफ्ट करती हूँ मैं। Engine components, right? I would have added engine components. Have I not? Oh, here they are. So basically एक इंजन में बहुत सारे इस टाइप के सिलेंडर्स होते हैं। ठीक है, और उन सिलेंडर्स के आसपास चीज़ें लगी होती है। तो मेन जो इंजन होता है वो यही सिलेंडर होता है। ठीक है, तो बेसिकली सिलेंडर में होता क्या है, इस सिलेंडर में सबसे पहले होता है अंदर एक पिस्टन जो ऊपर नीचे घूमता है, जो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करता है। ठीक है, ऊपर अगर स्पार्क प्लग है तो लाइक स्पार्क इग्निशन इंजन है तो पेट्रोल इंजन मतलब, तो स्पार्क प्लग होगा ऊपर, नहीं तो इंजेक्टर लगा होगा। ठीक है, देन देयर आर 2 वाल्व्स, एक ताकि फ्यूल और एयर अंदर आ सके और एक ताकि यूज फ्यूल और एयर बाहर जा सके। ठीक है, देन जो पिस्टन है इट हैज़ अ गड्जियन पिन, जहाँ पे कनेक्टेड रॉड से कनेक्टेड है, कनेक्टिंग रॉड से। और इस कनेक्टिंग रॉड का काम क्या है कि ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है पिस्टन का, उसको ट्रांसमिट करना एज द सर्कुलर मोशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड ऊपर से तो पिस्टन पे कनेक्टेड है गड्जियन पिन की हेल्प से, और नीचे क्रैंक पिन की हेल्प से क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड है। क्रैंकशाफ्ट इज बेसिकली अ रॉड जो घूमती है। ठीक है, और क्रैंकशाफ्ट के बाहर क्रैंकशाफ्ट इज कनेक्टेड टू अदर थिंग्स, जैसे कि कैमशाफ्ट हो गया। कैमशाफ्ट बेसिकली क्या करता है, ये वाल्व्स को खोलता है जब इनलेट और एग्जॉस्ट को खोलना होता है। ठीक है, इन वाल्व्स को खोलता है। और इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू फ्लाई व्हील।
फ्लाईव्हील से बेसिकली फ्लाईव्हील और गियर्स के बाद कनेक्ट होते हैं व्हील्स जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद वो कनेक्टेड होते हैं, और क्रैंकशाफ्ट से क्या कनेक्टेड होता है, अभी याद नहीं आ रहा है, आगे देख लेंगे, कुछ और भी कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी देखते हैं। तो ये अब आ गए इंजन कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इंजन कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है सिलेंडर। सिलेंडर एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे कंबशन हो रहा है, ठीक है। वो स्पेस प्रोवाइड करता है, बेसिक पार्ट है इंजन का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर सक होता है और रखा जाता है, ठीक है। सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, वो सॉलिड कास्टिंग बॉडी जिसमें सिलेंडर और वाटर जैकेट दोनों होती है। वाटर जैकेट इज बेसिकली लाइक वाटर को रन कराते हैं बाहर इंजन के अलग जगह पे, लाइक थोड़ा सा बाहर, ताकि इंजन ज़्यादा हीट अप ना हो। अगर एक इंजन की बात करें तो लाइक अगर उसमें 100% मान लो हीट आ रही है, तो उसमें से जो 40% है, 30% यूज़ होती है बस, ठीक है। उसके बाद जो 40% है वो एटमॉस्फेयर में स्केप कर जाती है अपने आप, और जो 30% बचती है उसे कूलिंग सिस्टम की हेल्प से लाइक थोड़ा कम किया जाता है। तो उसको अगर हम सिलेंडर्स के साथ जोड़ दें तो उसे सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। देन देयर सिलेंडर हेड, ये जो है डिटैचेबल पोर्शन है इंजन का जो सिलेंडर को कवर करता है, ठीक है। और इसके अंदर कंबशन चैम्बर्स, स्पार्क प्लग, इंजेक्टर और वाल्व्स वगैरह सब लगे होते हैं। Then there's cylinder line which is not very important. Then there's piston, ठीक है। piston is a cylindrical part जो कि close होता है काफ़ी सिलेंडर के, ठीक है। it is like closely sliding cylindrical part closed at one end which maintains a closely sliding fit in the engine cylinder. closely sliding क्यों, ताकि जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो बाहर भी ना जा सके, और लाइक ऐसा भी ना हो कि इतना ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप हो जाए कि ये ऊपर नीचे कर ही ना पाए, ठीक है। इट इज़ कनेक्टेड बाय द कनेक्टिंग रॉड टू बाय पिस्टन, ठीक है। तो कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड होता है। द फोर्स एक्सपैंडिंग गैसेस क्लोज टू द पिस्टन, ठीक है। एल्यूमिनियम से बनते हैं बेसिकली ये जो पिस्टन होता है, एल्यूमिनियम और उसके अलॉयज से, ठीक है। अगर हम कास्ट आयरन से बना रहे हैं कुछ चीज़, तो बेसिकली कास्ट आयरन से भी बनती है काफ़ी चीज़ें, और वो इसलिए क्योंकि इसमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। और एल्यूमिनियम और उसके अलॉय से बनती है कोई चीज़, तो उसमें बेसिकली इसलिए बनती है क्योंकि उसमें लाइटनेस होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इसके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं। एक तो इसका सिर हो गया, एक इसकी स्कर्ट हो गई, ठीक है। इसके अराउंड ग्रूव्स बने होते हैं, जिस ग्रूव में पिस्टन पिन होती है, पिस्टन रिंग होती है। और इन पिस्टन रिंग का क्या काम होता है, ताकि पूरा पिस्टन ना घिसे उसके साइड्स में, इसलिए पिस्टन रिंग होती है। पिस्टन रिंग भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है कंप्रेशन रिंग और एक होती है ऑयल रिंग। कंप्रेशन रिंग वो होती है जो ऊपर की तरफ होती है, ऊपर की तरफ एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है, तो वो उसको कंप्रेस करती है, उसमें हेल्प करती है। और जो ऑयल रिंग होती है उसमें एक्चुअली छेद छेद होते हैं, वो नीचे की तरफ होती है। बेसिकली बार बार ऊपर नीचे के मूवमेंट से फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, तो एक ल्यूब्रिकेशन सिस्टम भी होता है। ये ल्यूब्रिकेशन सिस्टम ऑयल डालते हैं अंदर, ताकि लाइक वो आराम से स्लाइड कर सके, ठीक है। और तो ऑयल रिंग बेसिकली क्या करती है, उस ऑयल को एंटर करने के लिए अलाउ करती है, क्योंकि उसमें छेद छेद से होता है, ये नीचे की तरफ होती है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पिस्टन पिन पे। पिस्टन पिन को रिस्ट पिन या गर्जियन पिन भी बोलते हैं, और ये उसे कनेक्टिंग रॉड से जोड़ती है। कनेक्टिंग रॉड क्या है, एक रॉड है जो ऊपर पिस्टन से जुड़ी हुई है, नीचे क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी हुई है। पिस्टन से गर्जियन पिन की हेल्प से, क्रैंकशाफ्ट से क्रैंक पिन की हेल्प से, ठीक है। और ये जो पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिकल मूवमेंट है उसको कन्वर्ट करती है रोटेटरी मूवमेंट ऑफ क्रैंकशाफ्ट में, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट क्या करता है, वो पार्ट है जो कि इस रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को रोटेटरी मूवमेंट में कन्वर्ट करके फ्लाईव्हील को देता है, ठीक है। उसके बाद फ्लाईव्हील क्या है, फ्लाईव्हील कास्ट आयरन का बना हुआ एक पार्ट है, ठीक है, जो कि पावर स्ट्रोक के दौरान तो एनर्जी स्ट्रोक करता है, लाइक पावर स्ट्रोक के दौरान ये घूमना स्टार्ट करता है, ठीक है। और जब पावर स्ट्रोक नहीं भी चल रहा होता है, यानी कि जब पावर नहीं भी मिल रही होती है, तो ये तब भी रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। और इसकी वजह से फिर वो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट कंटिन्यू करता है।
एक तो ये काम हो गया फ्लाईव्हील का, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये इंजन टाइमिंग जो होती है वो फ्लाईव्हील पे मार्क होती है जनरली, ठीक है, जिससे कि टाइम एडजस्ट करा जा सकता है, ठीक है। और कई बार ये पुली का पर्पस भी करता है पावर ट्रांसमिट करने के लिए। देन देयर इज क्रैंककेस। क्रैंककेस क्या होता है? क्रैंककेस इज बेसिकली जहाँ पे क्रैंकशाफ्ट होता है उसके अंदर, उसको बोलते हैं। और इसमें और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे कई बार इसमें ऑयल सम्प, ऑयल फिल्टर, लुब्रिकेशन सिस्टम के पार्ट्स होते हैं बेसिकली। देन देयर इज कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट इज कनेक्टेड टू द क्रैंकशाफ्ट। इसकी स्पीड जो होती है वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ द क्रैंकशाफ्ट होती है, ठीक है। यानी कि उसकी हाफ स्पीड में चलता है और इसका बेसिकली काम होता है इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल को ओपन एंड क्लोज करना। देन देयर इज टाइमिंग गियर्स। टाइमिंग गियर्स का काम होता है कि वो लाइक प्रॉपर टाइम मेंटेन करे कैमशाफ्ट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। देन देयर इज इनलेट मैनिफोल्ड, जहाँ से एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जहाँ से लाइक एग्जॉस्ट निकल के जाएगा। टॉप डेड सेंटर, वो पॉइंट जहाँ पे पिस्टन जो है अपने सबसे टॉप पे है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, उसे बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। फिर आता है बॉटम डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर वो पॉइंट है जहाँ से नीचे पिस्टन नहीं जा सकता है, ठीक है। स्कैवेंजिंग क्या होता है? स्कैवेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बर्न्ट और एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है। देन देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी। ये तो बेसिक पार्ट्स थे इंजन के, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज पे विल कम लेटर। अभी 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक पढ़ लेते हैं। या तो बेसिकली वर्किंग साइकिल के बेसिस पे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन था, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक इंजन बेसिकली कैसे काम करता है, तो लाइक अगर ये एक इंजन है तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक चलेगा, ठीक है। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि इनलेट वाल्व खुलता है। इनलेट वाल्व खुला, इस वजह से क्या हो रहा है, और जो पिस्टन है वो नीचे जाना शुरू करता है, जिस वजह से बाहर प्रेशर ज़्यादा बनता है, अंदर प्रेशर कम बन रहा होता है, लेकिन अंदर का प्रेशर कम हो रहा होता है और इस वजह से फ्यूल अंदर आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक, ठीक है। देन होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन वापस ऊपर जा रहा होता है, इनलेट वाल्व बंद कर देते हैं, इस वजह से उस लाइक जो एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आया है उस पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, और वो कंप्रेस होता है, इसे बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है। और इस स्ट्रोक के बाद लाइक इसी स्ट्रोक में या तो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग अपनी स्पार्क छोड़ता है और डीजल इंजन जो है वो अपना डीजल छिड़कता है इंजेक्टर की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद आता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में बेसिकली क्या होता है कि वो बर्न हो जाता है। बर्न होता है तो वो एकदम से इतनी एनर्जी निकालता है कि पिस्टन दोबारा नीचे जाता है। फ्लाईव्हील का काम बेसिकली क्या ऊपर बता रहे थे हम कि जब पिस्टन नीचे जा रहा है, जब पावर स्ट्रोक हो रहा है तब वो घूम रहा है, उस एनर्जी को स्टोर कर रहा है और बाकी ऊपर नीचे करने में हेल्प कर रहा है वापस घूम घूम के, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू दिस ना, धीरे धीरे लाइक इनडायरेक्टली कनेक्टेड। देन देयर इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन वापस ऊपर जाता है जब एग्जॉस्ट वाल्व खुला होता है, इस वजह से सारा यूज्ड एयर फ्यूल मिक्सचर बाहर जाता है। अब 4 स्ट्रोक साइकिल में क्या होता है? 4 स्ट्रोक साइकिल में सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट तीनों सारों के लिए पिस्टन का ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो 2 स्ट्रोक साइकिल है, 2 स्ट्रोक साइकिल में बेसिकली सक्शन और कंप्रेशन ऊपर जान लाइक जब नीचे आ रहा होता है तब हो जाता है, नहीं ऊपर जा रहा होता है तब हो जाता है, लाइक जब पिस्टन ऊपर जा रहा होगा तब सक्शन और कंप्रेशन दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, और जब पावर और एग्जॉस्ट होते हैं तो पिस्टन बेसिकली नीचे आ रहा होता है, ठीक है। तो पावर और एग्जॉस्ट इकट्ठे हो जाते हैं। अब ऐसा कैसे होता है? ऐसा बेसिकली इस मैनिफोल्ड के पोजीशन की वजह से हो पाता है। अगर हम 2 स्ट्रोक के मैनिफोल्ड की पोजीशन देखें, वेयर इज इट गिवन, हाँ, बेसिकली इट इज़ द पोजीशन। तो जो इनलेट वाल्व होता है उसको कब काम करना है? सक्शन और कंप्रेशन को इकट्ठे काम करना है, ठीक है। यानी कि जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तब सक्शन होगा, यानी कि ये जो नीचे वाला है वो तब फ्री होगा जब पिस्टन ऊपर जाएगा, और ये इनलेट वाल्व है तो यहाँ से फ्यूल तब आएगा जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस वजह से सक्शन और कंप्रेशन इकट्ठे हो रहा है। फिर जब यहाँ पे पावर बनेगी तो एकदम से नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये ऊपर वाला खुल जाएगा। यहाँ पे वाल्व्स नहीं होते, पोर्ट्स होते हैं, ये बंद नहीं होता है, ये इस सिलेंडर की वजह से बंद रहता है।
ठीक है, तो ये ऊपर वाला खुल जाएगा, तब एग्जॉस्ट भी साथ साथ हो जाएगा. सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू साइकिल्स. और लाइक जो ये हर क्या होता है बेसिकली, जब एक बार पिस्टन ऊपर जाता है या एक बार पिस्टन नीचे आता है, तो इस वजह से जो क्रैंकशाफ्ट है वो एक बारी के लिए 180 डिग्री घूमता है, यानी कि ऊपर नीचे में 360 डिग्री घूमता है. तो 4 स्ट्रोक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के 2 मूवमेंट्स हो जाते हैं, और 2 स्ट्रोक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट का एक ही मूवमेंट होता है. ठीक है. इफ वी कंपेयर बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन, तो 2 स्ट्रोक इंजन में 2 रेवोल्यूशंस होते हैं क्रैंकशाफ्ट के 4 स्ट्रोक में, और 2 स्ट्रोक में 1 होता है. 4 स्ट्रोक में इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए वाल्व्स होते हैं. 2 स्ट्रोक में पोर्ट्स होते हैं. ठीक है. 4 स्ट्रोक में क्रैंकेस जो है फुली क्लोज और एयर टाइट नहीं होता है, लेकिन 2 स्ट्रोक में क्रैंकेस फुली क्लोज और एयर टाइट होता है. 4 स्ट्रोक में जो है टॉप ऑफ पिस्टन कंप्रेसेस द चार्ज. ठीक है. और 2 स्ट्रोक में इवन पिस्टन के साइड्स भी चार्ज को कंप्रेस कर रहे होते हैं. ठीक है. 4 स्ट्रोक में साइज ऑफ फ्लाईव्हील इज कंपैरेटिवली लार्जर, जबकि 2 स्ट्रोक में इट इज स्मॉलर. ठीक है. 4 स्ट्रोक में फ्यूल इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड. 2 स्ट्रोक में क्योंकि जब फ्यूल मिक्स हो रहा है, जो यूज्ड है और अनयूज्ड है वो मिक्स हो रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि अनयूज्ड भी बाहर चला जाए, तो फ्यूल इज नॉट कम्प्लीटली यूज्ड. ठीक है. वेट ऑफ इंजन 4 स्ट्रोक में ज़्यादा होता है, 2 स्ट्रोक में कम होता है. थर्मल एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक में ज़्यादा होती है, 2 स्ट्रोक में कम होती है. रिमूवल ऑफ एग्जॉस्ट ऑफ गैसेस 4 स्ट्रोक में ज़्यादा होता है, 2 स्ट्रोक में कम होता है. 4 स्ट्रोक में टॉर्क इवनली प्रोड्यूस होता है, जबकि 2 स्ट्रोक में टॉर्क इवनली प्रोड्यूस नहीं होता है. 4 स्ट्रोक में सारे टाइप की स्पीड्स पॉसिबल होती है, 2 स्ट्रोक में सिर्फ हाई स्पीड पॉसिबल होती है. 4 स्ट्रोक एक डायरेक्शन में हो सकता है, जबकि 2 स्ट्रोक दोनों डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है. इसके बाद हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन में. तो बेसिकली हमने बताया था कि डीजल इंजन में क्या होता है कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता. स्पार्क प्लग नहीं होता तो यानी कि इग्निशन सिस्टम स्पार्क सिस्टम नहीं होता है, और कार्बोरेटर, इग्निशन कॉइल, ये सब स्पार्क इग्निशन सिस्टम में होता है. इसकी जगह पे इसमें होता है कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम, जिसमें इंजेक्टर होता है. ठीक है. पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर, इग्निशन कॉइल और स्पार्क प्लग होते हैं, तो इसमें बेसिकली स्पार्क इग्निशन सिस्टम होता है. डीजल में कंप्रेशन ज़्यादा होता है क्योंकि सिर्फ एयर कंप्रेस हो रही होती है, तो 14:1 से 22:1 तक होता है. और पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन कम होता है, 5:1 से 8:1 तक. डीजल इंजन में डीजल फ्यूल की तरह डाल रहे हैं, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल फ्यूल की तरह डाल रहे हैं. डीजल इंजन में सिर्फ एयर सक होती है सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे, जबकि पेट्रोल इंजन में फ्यूल और एयर दोनों सक किए जाते हैं. डीजल इंजन में इंजेक्टर होता है और फ्यूल इंजेक्शन पम्प होता है, पर पेट्रोल इंजन में ऐसा कुछ नहीं होता है. डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है 32 to 38%, और पेट्रोल इंजन की 25 to 32%. डीजल इंजन की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, लेकिन लाइक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा होती है, और पेट्रोल इंजन की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थोड़ी कम होती है, पर ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है. उसके बाद इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है. तो डीजल इंजन ज़्यादा प्रेशर तक जाता है 35 से 45 kg/cm², और ज़्यादा टेम्परेचर पे भी 500 डिग्री सेल्सियस, जबकि पेट्रोल इंजन जाता है 6 to 10 kg/cm² और टेम्परेचर लगभग 260 डिग्री सेल्सियस. ये हमने पढ़ लिए थे. अब बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो बोर होता है. बोर इज बेसिकली द डायमीटर ऑफ इंजन सिलेंडर. स्ट्रोक होता है लेंथ, जितना ऊपर नीचे हो रहा है वो, ठीक है, उसके लीनियर डिस्टेंस को बोलते हैं. इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि टॉप डेड सेंटर में से बॉटम डेड सेंटर माइनस कर देंगे, जितना आया उतना स्ट्रोक. स्ट्रोक बोर रेशो होता है. स्ट्रोक बोर रेशो इज बेसिकली L/D. ये 1 से 1.45 के बीच में हो सकता है, और ट्रैक्टर्स के लिए बेसिकली 1.25 होता है. स्वेप्ट वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम पिस्टन ऊपर नीचे स्वीप कर रहा है वो कितना होगा, एरिया जो भी है, और जितनी लेंथ हो रही है. हम लेंथ को क्या बोल रहे थे, हम लेंथ को स्ट्रोक लेंथ बोल रहे थे. तो एरिया इंटू स्ट्रोक लेंथ हो गया वॉल्यूम. एरिया कैसे निकालेंगे, बोर की हेल्प से. हमें डायमीटर पता है और ये एक सिलेंडर है, तो लाइक एरिया तो सर्कल का निकलेगा.
देन कंप्रेशन रेशो इज बेसिकली कि कितना वॉल्यूम पहले था और कितना वॉल्यूम बाद में हो गया, उसको बोलते हैं। डीजल इंजन का ज़्यादा होता है, पेट्रोल का कम होता है। सॉरी। देन देयर पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसको वॉट में काउंट कर सकते हैं, जूल में काउंट कर सकते हैं, कैलोरी में काउंट कर सकते हैं, या हॉर्स पावर में काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है इंडिकेटेड हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर निकालने के लिए, इंडिकेटेड हॉर्स पावर होता क्या है बेसिकली, ठीक है, अगर हम फ्रिक्शनल लॉसेस काउंट ना करें तो जो हॉर्स पावर, जितनी पावर डेवलप हुई है उसे इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहते हैं। इसकी अमाउंट क्या होती है, प्लान और फिर इंटू एन अगर 2 स्ट्रोक है और n/2 अगर 4 स्ट्रोक है, ठीक है, लाइक इंटू नंबर ऑफ क्रैंकशाफ्ट के मूव, नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है, लाइक क्रैंकशाफ्ट मूवमेंट अपॉन साइकिल्स, ठीक है। तो अगर प्लान की बात करें तो प्लान स्टैंड्स फॉर प्रेशर, स्ट्रोक लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड देन इंजर रेवोल्यूशन पर मिनट, और आरपीएम कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है 1 मिनट में, कितनी बार घूम रहा है 1 मिनट में। ये हो गया इंडिकेटेड हॉर्स पावर। फिर है ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर जो है वो बाद में लाइक सारे लॉसेस वगैरह काउंट करके जितनी बन रही है, जितनी मिल रही है, उसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है 2π/NT/4500 HP, ठीक है। इसमें T है टॉर्क और N है आरपीएम, 2π इज अ कांस्टेंट। तो ये थे बेसिकली। अब यहाँ पे हमें सर ने बताया था कि अगर हमें कभी फायरिंग इंटरवल पूछा जाए तो हम 720 अपॉन नंबर ऑफ सिलेंडर्स कर सकते हैं 4 स्ट्रोक इंजन के लिए। क्यों? क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन में 360 + 360 2 क्रैंकशाफ्ट के हो रहे हैं, ठीक है। उसमें तो हो गया, तो 720 बन गया। एंड देन अपॉन नंबर ऑफ सिलेंडर्स, तो हमें पता चल जाएगा कि एक सिलेंडर और दूसरे सिलेंडर की पार बनने में या किसी एक फेज के दोबारा आने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। और ओवरलैप कितना होता है, ओवरलैप निकालने के लिए 180 माइनस फायरिंग इंटरवल करते हैं। देन सर ने बताया था कि अगर बहुत सारे सिलेंडर्स होते हैं तो किस ऑर्डर में चलते हैं, लाइक अगर एक के बाद एक के बाद एक के बाद सिलेंडर्स चलेंगे तो वो बर्निंग ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, उसे टाइम नहीं मिलेगा ठंडा होने का। तो इसलिए अगर 4 है तो यहाँ पे 4 के लिए बनाई गई है 1342, ये ट्रिक है 1342। और अगर 6 सिलेंडर्स है तो 153 6 2 4 ऐसे चलता है नंबर ऑफ सिलेंडर। लाइक पहले फर्स्ट वाला चलेगा, फिर फिफ्थ वाला, फिर थर्ड वाला, फिर सिक्स्थ वाला, फिर सेकेंड वाला, फिर फोर्थ वाला। ये होगा बेसिकली। अब आते हैं बहुत सारे सिस्टम्स जो होते हैं आईसीई में, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन में, जिसमें पहले वाला आएगा इंजेक्शन सिस्टम। इंजेक्शन सिस्टम लाइक फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए होता है। तो फ्यूल बेसिकली, फ्यूल की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है फ्यूल की। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि लाइक एक पर्टिकुलर अमाउंट का फ्यूल बर्न करने की वजह से कितना एनर्जी रिलीट हो रहा है, कितना हीट रिलीज हो रहा है, उसको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो एज यू कैन सी डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, लाइक कम होती है पेट्रोल से बेसिकली। डीजल की 10,300 है तो पेट्रोल की 11,100 है। उसके बाद आता है फ्यूल सिस्टम इन स्पार्क इग्निशन, यानी कि स्पार्क इग्निशन में लाइक फ्यूल सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। तो फ्यूल सिस्टम की अगर हम बात करें तो फ्यूल सिस्टम बेसिकली स्पार्क इंजन में कैसा होता है। ओह माय गॉड, इट शिफ्टेड, जस्ट वेट अ सेक। स्पार्क इग्निशन कौन सा वाला था? स्पार्क इग्निशन था पेट्रोल वाला। फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, फ्यूल कैसे सप्लाई होता है, फ्यूल टैंक में पड़ा होता है,
फ्यूल फिल्टर और एक पंप फ्यूल को लेके जाता है, उसे फिल्टर करता है, ठीक है। एयर आती है बाहर से, एयर फिल्टर होती है। कार्ब्यूरेटर जो है करेक्ट अमाउंट में इंजन के पास फ्यूल छोड़ता है, ठीक है। एक कार्ब्यूरेटर क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो एयर फ्यूल मिक्सचर बनाता है पर्टिकुलर रेशियो में, जिसे कि इंजेक्ट किया जा सकता है। फंक्शंस क्या क्या है इसके? एयर और फ्यूल को मिक्स करना प्रॉपर्ली, एटोमाइज करना फ्यूल को, यानी कि फ्यूल को, उसके बाद एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन करना, फिर सप्लाई करना करेक्ट अमाउंट में, ठीक है। ये बेसिकली होता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम, जो पेट्रोल इंजन या स्पार्क इग्निशन इंजन में होता है, जहाँ पे फ्यूल टैंक होता है, एयर होता है, पंप की हेल्प से और फिल्टर के थ्रू होते हुए वो कार्ब्यूरेटर तक जाता है, और कार्ब्यूरेटर इज द मेन सेंडर टू द इंजन, ठीक है। देन आता है डीजल इंजन में। डीजल इंजन में क्या होता है कि फ्यूल टैंक होता है, उसे लिफ्ट करने के लिए पंप होता है एक, ठीक है। उसके बाद फिल्टर्स होंगे फ्यूल के लिए, उसके बाद एक इंजेक्शन पंप होता है जो कि इसे इंजेक्टर तक लेके जाता है, और इंजेक्शन पंप और इंजेक्टर के बीच में हाई प्रेशर मेंटेन होता है, उस इसलिए उस उसको पाइप को हाई प्रेशर पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि फ्यूल टैंक से वो जाएगा, लिफ्ट होगा, फिल्टर वगैरह से इकट्ठा होगा, उसके बाद इंजेक्शन पंप इसे दोबारा पंप करेगा ताकि इसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। फिर वो हाई प्रेशर पाइप से होते हुए इंजेक्टर की हेल्प से हाई प्रेशर से कंप्रेस्ड एयर के अंदर जाएगा। ये होता है फ्यूल सिस्टम डीजल इंजन का। देन कम्स ल्यूब्रिकेशन सिस्टम। ल्यूब्रिकेशन सिस्टम की बात करें तो आई डू हैव नोट्स फॉर इट, लेट्स गो फॉर देम। ल्यूब्रिकेशन सिस्टम जो होता है, लाइक आईसी इंजन में हमने देखा पिस्टन बार बार ऊपर नीचे की मूवमेंट कर रहा है, और भी बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं जो बार बार मूवमेंट कर रहे होते हैं। अगर वो चलते रहे तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, घिसने लग जाएंगे वो चीज़ें। तो इसके लिए हम ल्यूब्रिकेशन सिस्टम की हेल्प से सारे में ऑयल पहुंचाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि ऑयल से क्या क्या होता है, ऑयल से वेयरिंग टेयरिंग नहीं होती है, फ्रिक्शन के रिडक्शन कम होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी आता है, सीलिंग इफेक्ट भी होता है, क्लीनिंग इफेक्ट भी होता है ऑयल का, ठीक है। उसके बाद इंजन ल्यूब्रिकेशन सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो इंजन का जो ल्यूब्रिकेशन सिस्टम होता है वो एक अरेंजमेंट है मैकेनिज्म का, जिससे कि हम ऑयल की सप्लाई मेंटेन करते हैं सारी सर्फेसिस पे करेक्ट प्रेशर और टेम्परेचर में, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स को ल्यूब्रिकेशन चाहिए होता है? हमें चाहिए सिलेंडर वॉल और पिस्टन को ल्यूब्रिकेशन चाहिए, पिस्टन पिन को चाहिए, क्रैंकशाफ्ट एंड कनेक्टिंग रॉड को ल्यूब्रिकेशन चाहिए, कैम शाफ्ट को ल्यूब्रिकेशन चाहिए, वाल्व्स ओपन क्लोज जो हो रहे हैं उनको ल्यूब्रिकेशन चाहिए, जितना भी मूविंग पार्ट है, कूलिंग फैन मूव कर रहा है उसको ल्यूब्रिकेशन चाहिए, वाटर पंप मूव कर रहा है उसको ल्यूब्रिकेशन चाहिए, इग्निशन मैकेनिज्म में ल्यूब्रिकेशन चाहिए। तो ल्यूब्रिकेशन भी दो तरीके का होता है, एक तो स्प्लैश सिस्टम और एक फोर्स्ड सिस्टम। अब वी टॉक अबाउट स्प्लैश सिस्टम, तो हम देखेंगे यहाँ पे सिलेंडर है, इसके नीचे एक ऑयल पैन है, ठीक है। जब पिस्टन नीचे आएगा तो वो ऑयल पैन पे एकदम से स्प्लैश करेगा ऑयल पैन को, और इस स्प्लैश की वजह से ऑयल ऊपर उड़ेगा, ऑयल ऊपर उड़ेगा तो सारे पार्ट्स में पहुंच जाएगा, हमेशा मान लेते हैं, लाइक इट इज़ अज्यूम्ड, ठीक है। और इस ऑयल पैन में एक प्रॉपर हाइट लेवल तक ऑयल होना चाहिए ये होने के लिए। तो स्प्लैश सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ऑयल जो होता है वो बिलो कनेक्टिंग रॉड होता है, कनेक्टिंग रॉड के रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट की वजह से ऑयल ऊपर नीचे स्प्लैश होता है, ठीक है। और इससे हम मान लेते हैं कि ऑयल सारे में लाइक प्रॉपर अमाउंट में स्प्लैश हो गया है, ठीक है। ये तब का यूजुअली कब किया जाता है जब सिंगल सिलेंडर इंजन हो, ठीक है। और ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि बाद में ऑयल जो है वो क्लीन नहीं रहता है, लाइक अगर ऑयल ऊपर से वो होके आ रहा है तो उसमें कुछ फ्यूल भी मिक्स होगा या कुछ और मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, हर जगह प्रॉपरली नहीं पहुंचता जिस वजह से वियर एंड टीयर होता है, ठीक है। और उसके बाद लाइक जो ऑयल होता है वो कभी कभी फ्यूल में भी चला जाता है जिसकी वजह से ब्लू स्मोक बनता है एक्सेट्रा। उसके बाद आता है फोर्स फीड सिस्टम। सो फोर्स फीड सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली नीचे ऑयल सम्प है, इसमें एक ऑयल पंप लगा हुआ है, और ऑयल पंप जो है पहले उसे ऑयल फिल्टर में भेज रहा है, उसके बाद हर जगह भेज रहा है, और बाद में ये पिस्टन के ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, और वापस ऑयल सम्प में चला जा रहा है।
इस सिस्टम को कहते हैं लाइक फोर्स्ड फीड सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, तो पंप प्रोवाइड्स ऑल द एनर्जी। ठीक है। ऑयल इज डायरेक्टली पंप टू द क्रैंकशाफ्ट कनेक्टिंग रॉड पिस्टन पिन, हर जगह जहाँ जहाँ चाहिए डायरेक्टली पंप किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पाइप्स हर जगह निकाले जाते हैं और ये जो है वापस जाता है कैसे, हेड से उसके। ठीक है, लाइक पिस्टन के हेड की तरफ से वापस नीचे चला जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट है इग्निशन सिस्टम। लाइक अगर हम ऊपर देखें इन सारे नोट से पहले, तो इग्निशन सिस्टम शुरू हो गया था। इग्निशन सिस्टम की बात करें तो आई डू हैव नोट्स फॉर इग्निशन सिस्टम एज वेल। तो इग्निशन सिस्टम की बात करें तो बेसिकली जो आई इंटरनल कंबशन इंजन होता है, उसमें फ्यूल को इग्निशन चाहिए होता है स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, तब इग्निशन सिस्टम आता है। हमने अब तक कौन कौन से सिस्टम पढ़ लिए? सबसे पहले फ्यूल सिस्टम, की फ्यूल डिलीवर कैसे होता है। देन हमने पढ़ा कौन सा, ल्यूब्रिकेशन सिस्टम। अब आ रहा है इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम में जब पहली बार फ्यूल बर्न होगा तो बर्न कैसे होगा, तो इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो सकती है, इसमें स्पार्क इग्निशन होता है जो पेट्रोल इंजन में होता है। देन हीट ऑफ कंप्रेशन, ये कंप्रेशन इग्निशन होता है जो डीजल इंजन में होता है। देन देर आर अदर टाइप, जैसे हॉट ट्यूब की वजह से हो गया या ओपन फ्लेम की वजह से हो गया। स्पार्क इग्निशन की बात करें तो स्पार्क इग्निशन में बेसिकली एक परफेक्टली टाइम्ड स्पार्क सर्च की जाती है। ठीक है, जहाँ पे बर्निंग स्टार्ट हो जाती है मैक्सिमम एफिशिएंसी में। स्पार्क इग्निशन दो टाइप का होता है, एक तो बैटरी इग्निशन और एक मैग्नेटो इग्निशन। बैटरी इग्निशन की बात करें तो बेसिकली बैटरी इग्निशन में दो सर्किट्स होते हैं, एक लो वोल्टेज और एक हाई वोल्टेज। हमने पढ़ा था 12th में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, तो बेसिकली ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। लाइक इंड्यूस्ड करंट, लाइक वोल्टेज हम कम कर रहे थे, वोल्टेज बढ़ा रहे थे फ्लक्स को चेंज करके एकदम से, वही सिस्टम है इसमें। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक प्राइमरी सर्किट बनाते हैं जो कि बैटरी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, हम एकदम से इस प्राइमरी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कोलैप्स करा देते हैं, इस वजह से फ्लक्स बेहतरीन तरीके से चेंज होता है। इस वजह से जो दूसरी हाई वोल्टेज कॉइल होती है दूसरी साइड में, उसमें V इज इक्वल्स टू आई ए होता है ना, तो लाइक वोल्टेज बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है, पर हाई वोल्टेज बनता है, वो आ जाता है। वो वहाँ कनेक्टेड होता है स्पार्क प्लग से। स्पार्क प्लग में जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को क्रॉस करने के चक्कर में वो इलेक्ट्रिसिटी एक स्पार्क बन के निकलती है, जिसके बाद बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा सिस्टम का डायग्राम है यहाँ पे। तो बेसिकली बैटरी कनेक्टेड होती है प्राइमरी कॉइल से। देन प्राइमरी कॉइल जो है जब फ्लक्स कोलैप्स करता है तो सेकेंडरी कॉइल से वोल्टेज हाई वोल्टेज बनाती है, और हाई वोल्टेज क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से सारे स्पार्क प्लग्स में जाता है। ठीक है, और स्पार्क प्लग्स में थोड़ा सा गैप होता है जिसकी वजह से स्पार्क बनती है। यहाँ पे लिखा है जो कि लो वोल्टेज करंट है सर्किट है, उसमें बैटरी, इग्निशन स्विच, एक सीरीज रजिस्टर, प्राइमरी वाइंडिंग और कॉन्टैक्ट ब्रेकर होता है। ये सारे सीरीज में अटैच्ड होते हैं। हाई वोल्टेज सर्किट में सेकेंडरी वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, हाई वोल्टेज वायरिंग और स्पार्क प्लग अटैच्ड होते हैं सीरीज में। ठीक है, जब इग्निशन सिस्टम इसका स्विच क्लोज है, ठीक है, करंट क्या करता है, वो बैटरी से प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो करता है। ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट ब्रेकर जो है वो भी बंद हो, कॉन्टैक्ट ब्रेकर इज बेसिकली ए स्विच, वो भी अगर बंद हो, बंद हो का मतलब लाइक ऑफ होना नहीं है, बंद हो मतलब उसमें बीच में स्पेस ना हो। दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वाइंडिंग, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड पे कॉन्टैक्ट ब्रेक जो है वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है एकदम से सारा इलेक्ट्रिसिटी कोलैप्स कर जाता है, मैग्नेटिक फील्ड वहीं रहता है, तो फिर हाई वोल्टेज करंट दूसरी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वहाँ पे आ जाता है। कितना हाई वोल्टेज, 20 to 24,000 वोल्ट्स। ठीक है, फिर ये हाई वोल्टेज जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता है, जहाँ से वो स्पार्क प्लग पे चला जाता है, और स्पार्क प्लग में थोड़ा सा गैप होता है, लाइक बेसिकली वहाँ से उस गैप की हेल्प से स्पार्क रिलीज होता है। ठीक है, अगर कंपोनेंट्स की बात करें हम एक बैटरी इग्निशन सिस्टम के, तो इसमें आ गया स्पार्क प्लग जो कि फ्यूल लाइक इग्नाइट करता है फ्यूल एयर मिक्सचर को। ठीक है, उसके बाद हाई वोल्टेज डिवाइस है करंट का। ठीक है,
और लाइक चार्ज को इग्नाइट करता है। ठीक है, स्पार्क गैप कितना होता है, लगभग 0.5 से 0.85 मिलीमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होता है, जो हाई वोल्टेज है उसे हर स्पार्क प्लग पे करेक्ट टाइम पे भेजना। फिर हो गया इग्निशन कॉयल, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग थी हम उसे इग्निशन कॉयल बोलेंगे। इग्निशन स्विच, जो स्टार्टिंग में स्विच था जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी खुल बंद हो रहा था, उसको इग्निशन स्विच बोलेंगे। और डायनेमो, डायनेमो बेसिकली बैटरी की तरह काम करता है। देन देयर इज मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली बैटरी नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, एक जनरेटर की हेल्प से। हमने एक सिंपल जनरेटर पढ़ा था 12th में, जहाँ पे हम साइड में 2 परमानेंट मैग्नेट्स लगाते हैं, बीच में कॉइल को घुमाते रहते हैं ताकि फ्लक्स रेगुलर चेंज करता रहे। ठीक है, और उससे वायर अटैच कर देते हैं ताकि उसमें करंट आए। ये सेटअप करते हैं, इस वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में जाता है। फिर जब प्राइमरी वाइंडिंग में कोलैप्स होता है, उस वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस होता है और वो डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से बढ़ता है। बाकी आगे का सेम प्रोसेस है। बेसिकली हम वहाँ पे बैटरी थी, यहाँ बैटरी की जगह लाइक एक वो हो गया है, मैग्नेट हो गया। मैग्नेटो किसको कहते हैं, वो सेटअप जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, लाइक अ सिंपल जनरेटर जो कि मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। देन देयर इज कंप्रेशन इग्निशन। कंप्रेशन इग्निशन की तो हमने स्टोरी पढ़ी ही है कि जब कंप्रेशन होता है एयर का डीजल इंजन में, उसके बाद हाई प्रेशर पे डीजल छिड़का जाता है, वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि डीजल बर्न कर जाता है। ठीक है, तो कंप्रेशन की वजह से इग्नाइट हो जा रहा है। कंप्रेशन रेशो कितना था, 14:1 to 22:1। और टेम्परेचर कितना था, वहाँ हमने 500 डिग्री सेल्सियस पढ़ा था, या 500 डिग्री फ़ारेनहाइट to 900 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रेशर 120 kg/cm²। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद आता है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम की बात करें तो बेसिकली जो हमारा इंजन है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, इतना ऊपर नीचे इतना चलना काफ़ी गर्म हो जाता है, तो उसे कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि सिर्फ 40% जो है वो एटमॉस्फेयर में डेसिपेट हो पाती है, इवन विद आर सो मेनी ऑफ एफर्ट्स कि हमने सिलेंडर 1 के बाद 2 ना चला के 3 चला दिया फिर भी। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक कूलिंग सिस्टम सेटअप करना पड़ता है। कूलिंग सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन में काफ़ी सिंपल होता है, इसमें बेसिकली बस पानी बाहर की तरफ चलाना होता है। ठीक है, और बाकी यही है। कूलिंग सिस्टम के भी अलग अलग टाइप है। ओपन जैकेट मेथड हो गया, फोर्स सर्कुलेशन मेथड हो गया। ओपन जैकेट में बाहर बस एक जैकेट होगी जिसमें कोल्ड वाटर घूमेगा। फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम में पंप की हेल्प से होगा ये सब। ठीक है, ये बेसिकली होते हैं कूलिंग सिस्टम। यहाँ पे हमारे सारे कूलिंग सिस्टम्स भी ख़त्म होते हैं। हमने कौन कौन से सिस्टम पढ़े, सबसे पहले फ्यूल सिस्टम, फिर उसके बाद आया था हमारा ल्यूब्रिकेशन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, और लास्ट में कूलिंग सिस्टम। लाइक आई थिंक दिस इज़ इनफ अभी के लिए।